تو اس ویڈیو گیم کا ڈیولپر اکیرا انفینٹی گیم کا کریئٹر ہے۔ اکیرا کو انفینٹی گیم کا ایڈمنسٹریٹر ہونے میں 15 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک دن وہ آدھی رات میں گیم کو بند کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ گیم کو بند کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلطی سے اسکائے ہو کر انفینٹی گیم کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور اسے ڈیمن لارڈ کونائے کا اوتار ملتا ہے۔ جب اکیرا کونائے کے روپ میں جاگتا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو پینل کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پینل کھولنے کی پرمیشن نہیں ہوتی اور ساتھ میں یہ دنیا بھی الگ ہوتی ہے جو اس نے بنائی تھی۔ کونائے ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھتا ہے جسے ڈیمن پریشان کر رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر شوق ہونے کے بعد کونائے ڈیمن کو بڑی آسانی سے ہرا دیتا ہے۔ اس چھوٹی لڑکی کا نام اکو ہے۔ کونائے کو پورا یقین ہے کہ اس نے اکو اور اس ڈیمن کو کبھی نہیں بنایا تھا، جس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا اس کی بنائی ہوئی دنیا سے الگ ہے۔ اس دنیا میں کونائے کو ایڈمنسٹریٹر پریویلیجز کو ایکسس کرنے کے لیے اور سکل پوائنٹ کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ ڈیمنز کہاں ہیں۔ اکو بتاتی ہے کہ وہ تو وشنگ شرائن میں سیلڈ ہے۔ راستے میں کونائے کو پتہ چلتا ہے کہ اکو کا دایاں پاؤں زخمی ہے، تو وہ اسے اپنی پیٹھ پر اٹھانے کے لیے کہتا ہے، لیکن اکو منع کرتی ہے کہ وہ بہت گندی ہے کیونکہ اسے اپنے گاؤں میں سب بلی کرتے ہیں اور وہ سب لوگ اس سے انسانوں کے ویسٹ پھینکنے جیسے گندے کام کرواتے ہیں۔ لیکن کونائے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور اکو کو پیٹھ پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر وشنگ شرائن کی طرف چل پڑتا ہے۔ وشنگ شرائن پہنچنے پر کونائے اکیلے اندر جاتا ہے اور اسے اندر بہت سارے لوگوں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ اچانک ایک پتھر کی مورتی اسے بتاتی ہے کہ یہ سب لوگ جو مرے پڑے ہیں ڈیمن لارڈ کونائے کو اس دنیا میں سمن کرنا چاہتے تھے۔ وہ مورتی کونائے کو اس کے دنیا میں واپس نہیں بھیج سکتی، لیکن اسے ایک اسپیشل رنگ پہننے کے لیے دیتی ہے۔ کونائے اس رنگ کو پسند نہیں کرتا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس کی آخری خواہش تھی۔ مورتی ڈھول کی طرح بکھر جاتی ہے۔ کونائے اس کنگڈم کے کیپٹل سٹی میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اکو اس کے ساتھ جانے کے لیے پوچھتی ہے۔ جانے سے پہلے کونائے اکو کی چیزیں لینے کے لیے اکو کے ولیج جاتے ہیں۔ کونائے انویزیبل ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ پلیئر ٹو پلیئر میسج کا استعمال کر کے اکو سے بات کرتا ہے۔ اچانک کچھ اسٹوپڈ بولیز اکو کو تنگ کرتے ہیں، جس سے کونائے غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رنگ اسے کمانڈ دیتا ہے کہ ان لڑکوں کو مار ڈالنا ہے۔ کونائے کوئی ظالم نہیں ہے تو اس لیے وہ رنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر وہ خود ان بولیز کے پاس جاتا ہے اور اس ویلیج کو جلا دیتا ہے۔ پھر وہ اکو کو لے کر ہولی کیپٹل کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک دن کونائے اور اکو پر ڈاکو حملہ کرتے ہیں، لیکن ان کا لیول بہت لو ہے کونائے کے لیے اور وہ انہیں آسانی سے ڈوج کرتا ہے۔ تبھی اچانک ایک پاورفل جادوگر جو ایک ہولی میڈن ہے، لونا ایلیگنٹ، انہیں بچا لیتی ہے اور ان ڈاکوؤں کو بھگا دیتی ہے۔ لونا کا میجک غلطی سے کونائے کو لگ جاتا ہے اور اسے درد ہوتا ہے۔ کونائے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ میجک کے خلاف کمزور ہے۔ لونا اور کونائے لڑائی کرنے لگتے ہیں اور کونائے لونا کے آرمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے زور سے سنیپ کرتا ہے۔ اس سین کا ایک الگ ہی فین بیس ہے۔ کونائے لونا کے پیسے لے لیتا ہے اور وہ ہولی کیپٹل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اپنے لیے ایک اچھا سا روم اور اکو کے لیے ایک سندر سا ڈریس خریدتے ہیں۔ وہ ایک پرنسس کی طرح لگ رہی تھی۔ پہلی بار زندگی میں کوئی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آیا ہے تو وہ قسم کھاتی ہے کہ وہ کونائے کی جرنی میں ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس رات لونا کونائے کی ہوٹل پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہیں جانے کے لیے۔ کونائے لونا کو اس کے پیسے واپس دے دیتا ہے، لیکن لونا اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ لگتا ہے اس پینکنگ سے دونوں بہت قریب ہو گئے۔ اگلے دن ایک ہولی میڈن کلر کوئین ہولی کیپٹل میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ لونا کی بڑی بہن ہے اور وہ بہت غصہ ہے۔ وہ سب کے سامنے لونا کو ڈانٹتی ہے کیونکہ وہ اکیلی چلی گئی تھی۔ تبھی کچھ سیٹنس کلٹ کے لوگ جو ڈیمن لارڈ کی پوجا کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کلر کوئین پر آگ اور برف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ سب کو آسانی سے ہرا دیتی ہے۔ کونائے کو بھی یہ یاد آتا ہے کہ یہ لوگ کلٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے وشنگ شرائن کے مرے ہوئے لوگوں کی طرح یونیفارم پہنی ہوئی ہے۔ لونا کلر کوئین اور ان کے سپاہیوں نے سیٹنس کو آسانی سے ہرا دیا، مگر ایک ممبر ڈارک ایسنس کا استعمال کر کے ان کے جادو کو کاٹ دیتا ہے اور ان کو جکڑ لیتا ہے۔ ایک بار پھر سے کونائے کی رنگ پرمیشن مانگتی ہے کہ پورے ایریا کو ڈسٹروائے کر دے، یہاں تک کہ سیٹنس اور ہولی میڈنز کو بھی، لیکن کونائے رنگ کی صلاح نہیں مانتا۔ وہ رنگ اسے پیرالائز کر دیتی ہے۔
कोनाई के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो उसे गेम ऑप्शन खोलना पड़ता है जिसमें उसको अपने कैरेक्टर को बदलने की इजाजत मिलती है। फिर एक फ्लैश लाइट निकल के वो न्यू कूल कैरेक्टर जीरो बन जाता है। किलर क्वीन तुरंत ही उस पे फिदा हो जाती है। जब जीरो सब सेटिनस को ड्रैगन मैजिक से आसानी से हरा देता है, किलर क्वीन प्यार में पागल हो जाती है और अपनी नाक बंद कर लेती है क्योंकि खून बहने का खतरा है। बाद में कोनाई साइड में जाकर खुद पे क्रिंच करता है जीरो को इतना फ्लैशी और ओवर द टॉप कैरेक्टर बनाने के लिए। कोनाई, आकू और लूना सफर को जारी रखते हैं। कहीं और दो बाउंटी हंटर्स होते हैं, मिकान टॉम बॉय गर्ल और यूके काजे एक खूबसूरत जादूगर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब ट्रैप है। अभी मिकान और यूके काजे कुछ सैंड वॉल्फ्स के पीछे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो वहां से भागकर कोनाई की गाड़ी के पास से गुजरते हैं। कोनाई मैजिक यूज करके सैंड वॉल्फ को आसानी से हरा देता है। फिर वो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। यूकी काजे के दिल में भी कोनाई के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। फाइनली कोनाई को एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के लिए काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं और कोनाई अब एक हेल्पर को समन कर सकता है। उसके पास 8 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ एक के लिए ही पॉइंट्स होते हैं। तो कोनाई एक जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर किरिनो को समन करता है। कोनाई उससे थोड़ा डरता है क्योंकि उसमें सैडिस्टिक टेंडेंसीज हैं और वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंटेशन करती है, इसलिए कोनाई उसे किसी को भी मारने से मना करता है। कोनाई उसे टास्क देता है आकू के जख्मी पाव को ठीक करने का, तो किरिनो अपने मैजिक सर्जन हाथों से उसे ठीक कर देती है। आकू खुशी से दौड़ने लगती है और बाकियों की तरह वो भी कोनाई से प्यार करने लगती है। इस बीच कोनाई किरिनो को अच्छा काम करने के लिए थैंक्स बोलता है और जैसे ही वो उसे टच करता है वो भी कोनाई से प्यार करने लगती है। वाह, क्या किस्मत है कोनाई की। कहीं और साइंटिस्ट कल्ट का फाउंडर ओटोपिया अपने फॉलोअर्स को डांट रहा है कि डार्क पावर्स होने के बावजूद वो होली मेडन्स को ना हरा पाए। इस बीच कोनाई की पार्टी एक गांव में पहुंचती है जो लूना के कंट्रोल में है। इसके बावजूद गांव बहुत बुरी हालत में है क्योंकि लूना अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर है। कोनाई और किरिनो को रियलाइज होता है कि चर्च लूना को एक ऐसा इलाका देकर बेवकूफ बना रहा है जिसे संभालना मुश्किल है और प्रॉफिटेबल इलाके खुद रख रहा है। तो कोनाई एक छोटी सी जगह उधार मांगता है जहां वो एक डॉक्टर का क्लिनिक और एक हॉट स्प्रिंग चला सके। गांव में रैबिट के कानों वाले लोग रहते हैं जिन्हें बनीज कहते हैं। बनीज अपने फसलों को नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी की बहुत कमी है। कुआं भी खुश्क है तो कोनाई अपने पावर्स का इस्तेमाल करके खास पुली व्हील इंस्टॉल करता है। अब वो खुश्क कुआं भी पानी देता है। फिर वो दोबारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर बनाता है। गांव के बनीज इससे बहुत खुश हो गए। इस बीच होली किंगडम के होली कैपिटल में एल्डेस्ट होली मेडन एंजल वाइट को पता चलता है कि लूना के गांव तरक्की के लिए काम कर रहा है। एंजल वाइट हैरान हो जाती है क्योंकि लूना पहले तो इतनी बचकानी और काम छोड़ थी। फिर किलर क्वीन आती है और जीरो से प्यार का इजहार करती है। किलर क्वीन हमेशा सीरियस रहती थी। अपनी बहन का ये बदलाव देखकर एंजल वाइट परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ गैंग आकू की टांग के ठीक होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी उन्हें लेडी श्रिम्प फ्राई बटरफ्लाई मिलने आती है, एक सुपर रिच और हाई सोसाइटी की लेडी जिसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। वो उसे अपने साथ बिठाते हैं। कोनाई उसको एक साबुन गिफ्ट करता है जो कि उनके लिए एक न्यू इन्वेंशन है और ये मेल को साफ करके स्किन को रिन्यू कर देता है। श्रिम्प फ्राई बहुत खुश हो जाती है। तभी उन पर सारे सेटिनस हमला कर देते हैं। कोनाई इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। सेटिनस ने टाउन पर अटैक किया है, लेकिन पता चलता है कि मिकोन और यूकी काजे उनसे लड़ रहे हैं। कोनाई भी मदद करने आता है और यूके काजे फिर से उसे देखकर ब्लश करती है। कोनाई सेटिनस से लड़ता है, लेकिन उनमें से एक अपने ब्लड को यूज करके मिड लेवल डीमन को बुलाता है जिसे कार्निवल कहते हैं। कार्निवल बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कोनाई थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और उस डीमन को अपने मैजिक से ब्लास्ट कर देता है। और मजे की बात ये उसकी 10% पावर ही है। सारे शहरी कोनाई को हीरो के जैसे ट्रीट करते हैं। जब कोनाई बाहर सेटिनस से लड़ रहा था, एक असैसिन कामिया लूना को मारना चाहती है, लेकिन करिनो उसके हाथों को काट कर फिर से जोड़ देती है। कामिया इससे ट्रॉमेटाइज हो जाती है और भाग जाती है। दूसरी तरफ बहुत से सेटिनस अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक पावरफुल डेवल प्रिंस ऑफ डार्कनेस रूइट को समन करते हैं। रूइट को देखकर एंजल वाइट फौरन एक मैजिकल बैरियर लगा देती है, जबकि किलर क्वीन उससे नीचे लड़ रही होती है। लेकिन एक सेटिनस लड़की डार्क लिक्विड डाल देती है जिससे किलर क्वीन की पावर खत्म हो जाती है।
और फिर रूइट उसे हरा देता है। एंजल वाइट बस हेल्पलेस होकर देखती है क्योंकि वो मैजिकल बैरियर होल्ड कर रही है। कुनाई ये सब कुछ देख लेता है और फिर से उसका कैरेक्टर जीरो में चेंज हो जाता है और एक बार फिर से डार्क स्पेल हट जाता है जब वो चलता है। कुनाई या फिर हम कहें जीरो बहुत पावरफुल है तो वो रूइट को मारने लगता है, तो रूइट पावर्स के लिए अपने साथी सेटेनस गर्ल को मार डालता है और उसके खून को यूज करके नेक्स्ट फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन जीरो उस लड़की को हील कर देता है। रूइट एक पावरफुल बीस्ट के रूप में आ जाता है जो कि जीरो से साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन एनिमे का रूल है कि बड़ी चीजें हमेशा मर जाती हैं। जीरो एक पंच से रूइट को मार देता है। किलर क्वीन फिर से उसकी फैन गर्ल बन जाती है। सेटेनस लड़की ट्रोन भी जीरो को पसंद करने लगती है। बाद में कुनाई अपनी नॉर्मल फॉर्म में बदल कर एंजल वाइट के पास जाता है। एंजल वाइट कुनाई का डीमन लॉर्ड होने पर चिंतित होती है। कुनाई उसे तसल्ली देता है और सिर्फ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है जो कि इस जगह के पावरफुल रूलर्स थे। एंजल वाइट कुनाई को सिर्फ के बारे में बताने से इनकार कर देती है। रूइट के साथ लड़ाई के बाद कुनाई को काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे वो थोड़ी टाइम में जल्दी से जा सकता है जहां वो जाना चाहता है। कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद कुनाई डिसाइड करता है कि उसे किसी ऐसे आर्टिफैक्ट की जरूरत है जो उसे मैजिक्स के खिलाफ बेहतर तरह से बचा सके क्योंकि मैजिक उसकी कमजोरी है। एक गली में घूमते हुए सेटेनस लड़की ट्रोन उससे मिलने आती है जिसको कुनाई ने पहले बचाया था। ट्रोन समहाउ पता लगा लेती है कि कुनाई जीरो है क्योंकि वो इमोशंस देख सकती है, तो कुनाई ट्रोन को साथ लेकर जाता है और उसे ये सीक्रेट किसी को बताने से मना करता है। लूना तुरंत समझ जाती है कि ट्रोन एनिमीज के साइड पर है, पर कुनाई उसे कुछ नहीं करने देता। फिर सब लोग रैपिड गांव जाते हैं जो कि लूना के कंट्रोल में है। फास्ट ट्रेवल का सहारा लेकर सब वहां पहुंच जाते हैं और कुनाई और क्रीनो वहां एक नई फील्ड हॉस्पिटल की शुरुआत करते हैं। कुनाई क्रीनो से कहता है कि गरीबों से ज्यादा पैसे नहीं लेना और अमीरों को ज्यादा चार्ज करना। कुनाई हॉस्पिटल के साथ ही एक हॉट स्प्रिंग बनाता है। बनी गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए कुनाई एक और हेल्पर तहारा को समन करता है। तहारा एक गन एक्सपर्ट और शानदार फाइटर है, साथ में वो जीनियस है और साथ में वो पागल क्रीनो से भी बहुत डरता है। तहारा तुरंत गांव के लोगों को टूल्स को यूज करना सिखाता है। कुनाई का बनी गांव को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने का प्लान है, इसलिए वो कुछ बनीज लोगों के लिए स्किम्पी और शॉर्ट कपड़े बनवाता है ताकि वो कस्टमर्स को आकर्षित करे। उनमें से एक कस्टमर है श्रिम्प फ्राई जो अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेकर आती है, सैम्बो जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है, तो कुनाई उसे क्रीनो के पास ले जाता है और वो एक खास पोशन का इस्तेमाल करके उसकी आंखों का इलाज करती है। वो बहुत ही खुश होता है ये देखकर। श्रिम्प फ्राई क्रीनो को एक होली लैम्प से बना गोल्ड कॉइन तोहफे में देती है जो 100 जायंट गोल्ड कॉइन जितनी कीमती होती है। थोड़ी सी बैक स्टोरी, लूना बचपन से गरीबी में बड़ी हुई और उसका एक बेस्ट फ्रेंड था ईगल। वो कैसल में रहने के ख्वाब देखते थे। वक्त के साथ लूना मेहनत करके होली चर्च में शामिल हो गई, लेकिन ईगल को फांसी दे दी गई क्योंकि वो एक डमी ह्यूमन था जिससे लूना का दिल टूट गया। अब वो रैबिट विलेज में काम कर रही है तो वो यहाँ के लोगों को ईगल के रूप में देखती है जिसे उसे हर हाल में बचाना है, लेकिन अभी वो गांव को डेवलप करने में फोकस है। वो श्रिम्प फ्राई के लिए एक अच्छी होस्ट बनती है और हॉट स्प्रिंग में सोप और शैम्पू की चमत्कारी दिखाती है। दूसरी जगह क्रीनो तहारा को बताती है कि वो कुनाई से बहुत प्यार करने लगी है और उसकी फिजिकल चेकअप के दौरान उसके बहुत करीब आ जाती है। कुनाई जल्दी से गिगा चार्ट की तरह उससे दूर भागता है। एक दिन कुनाई अकेले ही होली कैपिटल जाता है और वहाँ युकिकाजे से मिलता है। क्योंकि युकिकाजे अभी भी उसे चाहती है, वो उसे अपने साथ पीने ले जाती है। उसकी टीम मेंबर मिकान भी साथ होती है। मिकान कुनाई को एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में बताती है जहाँ जाने के लिए एडवेंचरर को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन्हें मॉन्स्टर को मारना होता है और इसके लिए बहुत से मेडल्स और आइटम्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पावरफुल चीजें होली मेडल्स के पास हैं, जिसमें लूना भी है। इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ कुनाई नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला करता है स्पेशल आइटम्स ढूंढने के लिए और युकिकाजे भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिकान बिना चाहते हुए शामिल होती है। इस बीच एंजल वाइट लूना को रेस्क्यू करने बनी विलेज में आती है क्योंकि वो समझती है कि कुनाई ने लूना को कैद किया हुआ है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि विलेज के हालात बहुत अच्छे हैं और लूना अपनी ड्यूटीज की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से पूरी
کر رہی ہے۔ لونا اینجل وائٹ کو فریش ہونے کے لیے ہاٹ سپرنگ باتھ میں بھیج دیتی ہے، لیکن اینجل وائٹ غلطی سے مینز باتھ میں چلی جاتی ہے جہاں وہ کنائی سے ملتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کر بات کرتے ہیں اور ہاٹ سپرنگ کا پانی اتنا بڑھیا ہوتا ہے کہ اینجل وائٹ پوری طرح سے ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اب اینجل وائٹ تھوڑی شانت ہو جاتی ہے تو کنائی اینجل وائٹ کو ڈانٹتا ہے کیونکہ وہ اچھی لیڈر نہیں ہے، وہ اپنے کنگڈم کو ڈیمن سے بچانے میں کمزور ہے۔ اینجل وائٹ مانتی ہے کہ وہ ہولی کنگڈم کے حالات کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہے۔ اس پر کنائی اپنی انوینٹری سے ایک ہالو نکالتا ہے جو +2 کا ڈیفنس دیتا ہے۔ وہ اسے اینجل وائٹ کو گڈ ول کے ٹوکن کے طور پر دیتا ہے اور اصل میں یہ اینجل وائٹ پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اب وقت ہوتا ہے واپس جانے کا، تو کنائی فاسٹ ٹریول کا استعمال کر کے اینجل وائٹ کو اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ اینجل وائٹ بہت شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ یہ ٹیلی پورٹیشن صرف لیجنڈری اینجلز صرف ہی یوز کر سکتے ہیں۔ اینجل وائٹ غصہ کرتی ہے کہ شاید کنائی ایک لیجنڈری فیلن اینجل لوسیفر ہوگا اور وہ اسے اس کے پرانے اینجلک فارم میں واپس لانے کی قسم کھاتی ہے۔ اگلے دن کنائی اپنے نارتھ جانے کی تیاری کرتا ہے جیسے کہ اس نے پلان کیا تھا۔ اسے کچھ ایسے آئٹمز فائنڈ کرنے ہیں جو اسے میجک سپیل سے بچا سکیں۔ کنائی کرینو اور تہارا کو ولیج کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور تہارا سے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ولیج پر اٹیک کرے گا تو اسے مار دینا۔ پھر کنائی یوکی کاجی اور میکان کے ساتھ ولیج سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو آن کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔